Hello students, in lecture 1 and 2 we have done introduction of the vector algebra, in which we have done addition and direction cosines, direction ratios of opposition vector R. Now we are doing the multiplication of two vectors. We will do the multiplication by two methods, means two type of the multiplication are there. One is scalar product, another is vector product. Scalar product is also called dot product. Scalar or dot product of two vectors. In this lecture we will do scalar product or dot product of two vectors. Let A and B are two vectors given to you. The angle between these two vectors is theta. Then the dot product A dot B is equal to mod of A mod of B cos theta, cos of the angle, and this is the scalar because modulus of A is a number, modulus of B is a number, and cos of the angle is also a number. The multiplication of all these numbers are number, multiplication of all these scalars is also a scalars. That's why it is called scalar product, because A dot B is a scalar. And secondly, we will discuss about the angle. If the angle is 90 degree, suppose theta is equal to 90 degree, then this is equal to A mod of B cos 90. What is cos 90? Cos 90 is 0. Then this is equal to 0, means A dot B is equal to 0. A dot B is equal to 0 if theta is equal to 90. If A is perpendicular to B, then A dot B is equal to 0, means dot product of two perpendicular vectors is equal to 0. Now about parallel vectors. If theta is equal to 0, if theta is equal to 0 or theta is equal to pi, first of all we are discussing about the theta is equal to 0. If theta is equal to 0, cos 0 is 1. Cos 0 is 1, means A dot B is equal to mod of A mod of B if theta is equal to 0, because cos 0 is equal to 1, and means theta is equal to 0, both the vectors are parallel, or maybe both vectors are same. If both vectors are same, then this is equal to mod of A, its square, means mod of A का square जो है that is equal to A dot A. Later on we will use this result. A dot A is equal to mod of A square of the mod of A. And if theta is equal to pi, you know that cos pi is equal to -1. Then it is equal to A dot B is equal to minus of mod A mod B, because cos pi is equal to -1, means it is equal to minus of A dot B if theta is equal to pi. This is equal to minus of, if theta is equal to pi, this is equal to minus of A dot B. Now we are moving to the right-handed coordinate system, mutually perpendicular vectors. Let this is the coordinate system x, y, z. I is the unit vector along x-axis, j is the unit vector along the y-axis, and k is the unit vector along the z-axis. Then I dot I. What is I dot I? I dot I is equal to, by using the formula of dot product, mod of I, mod of first vector, mod of second vector, and cos of the angle. Right? Mod of first vector. As we have done in the last lectures, mod of unit vector means magnitude of the unit vector is 1. Then 1 dot 1, and angle between these two same vectors is 0. Then cos 0 is equal to 1. This is equal to 1. So I dot I is equal to 1. Similarly, j dot j is equal to 1. Similarly, k dot k is equal to 1. Now let us see about the different vectors, different unit vectors.
I dot j, you know that these are mutually perpendicular. The angle between I and j is 90 degree. Then mod of I, mod of j cos 90 is equal to 0. Then this is equal to 0. So I dot j is equal to j dot k is equal to k dot I is equal to 0. Now, how to find the angle between two vectors? The question is like, two vectors are given to you and you have to find the angle between the two vectors. So then you will use the formula cos theta is equal to a dot b mod of a mod of b. How? As we have done the formula, a dot b is equal to, the dot product is mod of a mod of b cos theta. Then cos theta is equal to ये नीचे आ जाएंगे. Then it is a dot b is equal to mod of a mod of b. आप क्या करेंगे, a dot b निकालेंगे, a और b दोनों की डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे जो अभी हमने पिछले लेक्चर्स में की है. a डॉट b और a डॉट b दोनों की डॉट प्रोडक्ट फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ. a इज इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k और b इज इक्वल टू b1i प्लस इसको a1 a2 a3 ले लेते हैं. a1 a2 a3 इसको b1 b2 b3 ले लेते हैं. तो a डॉट b क्या हो जाएगा, a डॉट b a1 b1. देखो a को उठाया, इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करते हैं ना मल्टीप्लिकेशन. b1 से मल्टीप्लाई किया a1 b1 और i डॉट प्रोडक्ट i और i में जो होगी वो 1 हो जाएगी. i डॉट i इज इक्वल टू 1. अब a1 को जब b2 के साथ करेंगे तो a1 b2 i डॉट j 0 होता है इसलिए ये नहीं ले सकते, 0 आ जाएगा. ऐसे ही a1 को b3 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा. फिर हम a2 उठाते हैं, a2 को b1 के साथ करेंगे j डॉट i 0 हो जाएगा और a2 को b2 के साथ करेंगे j डॉट j 1 हो जाएगा. तो इसलिए a2 b2 आएगा यहाँ पे. ऐसे ही a3 b3 आएगा. तो डॉट प्रोडक्ट आएगी. If vector A is this, B is this, then A dot B is equal to A1 B1 A2 B2 A3 B3. और mod of A ये हमने पिछले लेक्चर में किया है. mod of A कैसे किया है, A1 स्केयर प्लस A2 स्केयर ऐसे किया ना. R is equal to x स्केयर xi प्लस yj प्लस zk. देन mod of R is equal to x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस z स्केयर अंडर द रूट. तो ऐसे ही A1 स्केयर प्लस A2 स्केयर प्लस A3 स्केयर अंडर द रूट. और ऐसे ही mod of B कर लेना है. mod ऑफ b भी यही आ जाएगा. इसके अकॉर्डिंग यहाँ से ले लेंगे b1 स्केयर प्लस b2 स्केयर प्लस b3 स्केयर. तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा cos थीटा. और a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a होता है. कैसे, a डॉट b अगर यहाँ पे मैं b डॉट a लिखती हूँ, देखो b डॉट a लिखती हूँ तो क्या आएगा, mod ऑफ b mod ऑफ a और फिर वही दोनों के बीच में cos थीटा. तो ये तो स्केलर है. a डॉट b 4 मल्टीप्लाई 3 भी 12 होता है, 3 मल्टीप्लाई 4 भी 12 होता है. तो ये सेम आ जाएगा a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a. अब ये है कम्यूटेटिविटी, मीन्स स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. ये डिस्ट्रीब्यूटिव है कि ओवर एडिशन, स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. a डॉट b प्लस c, a डॉट b प्लस a डॉट c होता है. तो इसके बाद हम करते हैं, ये तो आपका सिंपल स्केलर प्रोडक्ट हो गया. और एंगल कैसे निकालेंगे, व्हेन टू वेक्टर्स आर गिवन टू यू, तो उनके बीच में आप एंगल कैसे निकालेंगे. दिस इज cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b बाई mod ऑफ a mod ऑफ b. और अब एक और इसमें कंसेप्ट है प्रोजेक्शन का. प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन. यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर a है, इसकी प्रोजेक्शन आपने इस लाइन L पर लेनी है. यहाँ पे वेक्टर b है, इसकी प्रोजेक्शन आपने वेक्टर इस पे लाइन L पर लेनी है. तो प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं, देखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन लाइन L. तो ये वेक्टर A यहाँ पर आ जाएगा और इसकी डायरेक्शन किसकी देनी है, इसको यहाँ पे आ जाना है. वेक्टर A जो है वो यहाँ पे आ जाएगा. अब यहाँ पे आने के बाद इस वेक्टर को डायरेक्शन किसकी मिलेगी, B की डायरेक्शन मिलेगी ना. अब किसी की डायरेक्शन देनी है तो उसको हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B. तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ A और इसकी डायरेक्शन देंगे. इसकी डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे. मीन्स A डॉट, और यूनिट वेक्टर क्या होता है,
बी बाय मॉड ऑफ बी। ये पीछे हमने किया है पिछले लेक्चर में। यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ ए। तो ये इसका मतलब ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ बी। मीन्स अगर अपने पास वेक्टर ए गिवन है, बी गिवन है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो आप क्या करेंगे, ए डॉट बी निकाल लेंगे और नीचे मॉड ऑफ बी लिख देंगे, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आ जाएगा। तो अब ये अभी जो हमने सब कुछ किया है इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी मैग्नीट्यूड 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। ए डॉट बी आपको 1 दिया हुआ है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 2 दिया हुआ है। आपको एंगल निकालना है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो ए डॉट बी 1 दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है, मॉड ऑफ ए 1 है, ये 2 है, 1/2 आ गया। कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू क्या लेगा, कोस इनवर्स 1/2। 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पे होता है, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू π/3। तो थीटा इज इक्वल टू π/3। इस तरह से आप एंगल निकालेंगे। तो और एक और क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। इसमें तो आपको क्या है कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी दिया हुआ था और इनकी डॉट प्रोडक्ट गिवन थी ए डॉट बी। अगर आपको वेक्टर्स गिवन होते हैं तो कैसे निकालते हैं, देखो वेक्टर्स गिवन है तो वेक्टर्स बता रही हूँ, एग्जाम्पल ले रहे हैं। वेक्टर ए है, वेक्टर ए इज आई प्लस जे माइनस के, और वेक्टर बी है आई माइनस जे, यहाँ पे आई माइनस जे प्लस के है, ठीक है। तो अब आपने इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो पहले आप ए डॉट बी ले लें। ए डॉट बी करेंगे, देखो 1 डॉट ये आ जाएगा 1 -1 और -1, तो ये इतना आ गया आपका -1, ठीक है। A1 A2 A1 B1 A2 B2 और A3 B3 ऐसे मल्टीप्लिकेशन की है। मॉड ऑफ ए करेंगे, मॉड ए क्या आएगा 1 + 1 + -1 + k1, तो ये √3 आ जाएगा आपका। ऐसे ही मॉड ऑफ बी क्या आएगा, ये भी √3 आ रहा है, तो इसमें हम पुट कर देंगे दिस इज इक्वल टू -1/√3 इंटू √3 -1/3। तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स -1/3। तो यहाँ पे अभी पीछे आया था 1/2, तो जिसकी वैल्यू आपको पता है तो उसका तो आप एंगल लिख देते हैं, जैसे उसका एंगल लिख दिया था हमने π/3। और जिसकी वैल्यू अननोन है, आपको पता नहीं है, तो आप उसको ऐसे छोड़ देंगे, यहाँ तक कर लेंगे। और कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू 5i - j -3k, 5a - j -3k and b is equal to i plus 3j -5k। शो दैट, ये a और b गिवन है, शो दैट a plus b and a minus b are perpendicular। ये प्रूव करना है कि a plus b और a minus b क्या परपेंडिकुलर हैं। अभी हमने किया था a is perpendicular to b, it means a dot b is equal to 0। तो अब हमारे पास ये और ये वेक्टर्स को हमने परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले a plus b कर लेंगे, a minus b कर लेंगे, फिर उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट अभी लेना आपको सिखाया, डॉट प्रोडक्ट लेंगे और वो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो यू शुड ट्राई योर सेल्फ दिस वन। और इसके बाद हम प्रोजेक्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए 2i + 3j + 2k ऑन द वेक्टर बी, ऑन द वेक्टर बी i + 2j + k। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन द वेक्टर बी। तो अभी हमने प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन द वेक्टर बी किया था। प्रोजेक्शन अभी मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन द वेक्टर बी
ऑन द वेक्टर बी, दिस इज इक्वल टू प्रोजेक्शन के लिए ये, और इसके साथ इसको डायरेक्शन देनी है यूनिट वेक्टर बी। अगर आपको यूनिट वेक्टर बी डायरेक्ट गिवन होता तो ठीक था, नहीं तो आपने क्या लिखना है, ए डॉट बी ये बाय मॉड ऑफ बी। तो ए डॉट बी आप ऊपर निकाल लेंगे, ए डॉट बी, और फिर नीचे मॉड ऑफ बी से डिवाइड कर लेंगे। तो ए डॉट बी निकालते हैं, ए डॉट बी ये करो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, तो 2 + 6 + 2 बाय मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ बी क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 4 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 स्क्वायर 1 अंडर द रूट 6 2 8 2 10 10 बाय रूट 6 10 बाय रूट 6 आ गया। तो और इसको फर्दर आगे सिंप्लीफाई कर भी सकते हैं, और नहीं तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। सिंप्लीफाई मतलब ऐसे कर सकते हैं, 2/5 कर सकते हैं, और नीचे इसको √2 √3 कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये √2 पर चला जाएगा, √2 आ जाएगा, तो √2 5/√3 आ जाएगा। फिर इसको √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 2 6 5 √6/3 ऐसे ले सकते हैं। इसी तरह से भी कर लो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। जो अभी जो कंसेप्ट्स किए हैं वो हम कर रहे हैं। फाइंड मॉड ऑफ A माइनस बी, फाइंड मॉड ऑफ A माइनस बी, ये निकालना है आपको, मॉड ऑफ A माइनस बी। और आपको अगर वेक्टर A और B गिवन होता तो आप क्या करते, A माइनस बी कर लेते और उसका मॉड निकाल लेते, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको A और B गिवन नहीं है। आपको क्या गिवन है, आपको मॉड ऑफ A गिवन है, दिस इज 2, मॉड ऑफ B गिवन है, दिस इज 3, एंड A डॉट B गिवन है, A डॉट B दिस इज इक्वल टू 4, A डॉट B गिवन है। अब आपको A और B अलग से वेक्टर्स गिवन नहीं है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, अभी हमने ये किया था कि A डॉट A इज इक्वल टू मॉड ऑफ A स्क्वायर, ये किया था। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको डॉट की फॉर्म में ले आएंगे, क्योंकि डॉट की फॉर्म में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, तो हम डॉट के फॉर्म में ले आएंगे। तो हम इसको करेंगे मॉड ऑफ A माइनस बी इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस बी इट्स डॉट प्रोडक्ट, ऐसे लिखेंगे। अब अभी मैंने आपको बताया कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप A उठाएंगे, A को पहले A के साथ करेंगे, A डॉट A माइनस A डॉट B, फिर ये माइनस B उठाएंगे, माइनस फिर इन दोनों के साथ करेंगे, माइनस B डॉट A और माइनस माइनस प्लस B डॉट B। अभी हमने किया था मॉड A डॉट A इज इक्वल टू मॉड ऑफ A का स्क्वायर माइनस A डॉट B और B डॉट A, दोनों A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, ये देखो ये कम्यूटेटिव है, तो यहाँ से आ जाएगा ट्वाइस ऑफ A डॉट B प्लस मॉड ऑफ B इट्स स्क्वायर, मॉड ऑफ A दिया हुआ है 2, इसका स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 2 A डॉट B गिवन है 4 प्लस B का स्क्वायर मॉड ऑफ B का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, 9 और 4 13, 13 माइनस 8 5 आ गया। तो मॉड ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू स्क्वायर इज 5, दिस इज इक्वल टू √5। तो इस तरह से ये सारे जो भी प्रॉपर्टीज़ हमने अभी की हैं वो इस तरह से क्वेश्चंस में यूज़ होती हैं, जो क्वेश्चंस मैं आपको एग्जांपल्स तौर पे करवा रही हूँ। अभी इसी टाइप का और क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इफ़ A इज़ यूनिट वेक्टर, A इज़ यूनिट वेक्टर मीन्स आपको मान के चलना है कि A यूनिट वेक्टर है, तो मोड ऑफ A इज इक्वल टू 1, ये गिवन है आपको। इफ़ A इज़ यूनिट वेक्टर एंड x माइनस a डॉट x प्लस a इज इक्वल टू 8, और आपको निकालना है वेक्टर x, वेक्टर x का मोड निकालना है आपको, और गिवन है a इज यूनिट वेक्टर, a इज यूनिट वेक्टर, तो आप पहले इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। a यूनिट वेक्टर मीन्स आपको मोड ऑफ a इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो A यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर का मोड 1 हो गया। तो इसकी डॉट प्रोडक्ट जो अभी हमने की है
x को इन दोनों के साथ करेंगे x डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट ए, फिर यहाँ से माइनस ए डॉट एक्स माइनस ए डॉट ए इज इक्वल टू 8। तो ये हो गया मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब ये देखो, अभी मैंने बताया ये कम्यूटेटिव है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, एक्स डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट एक्स, बट साइन इज डिफरेंट तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 8। तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर और मॉड ऑफ ए क्या है 1 है, तो ये 1 हो गया, इधर जाके प्लस हो गया, 8 + 1 9 हो गया। तो मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ±3, लेकिन हम 3 लेंगे क्योंकि मोड क्या है, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 3। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज में भी आपको क्वेश्चन गिवन है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ कोलिनियर का। ये है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। आपको पॉइंट्स गिवन है ए बी और सी, आपको प्रूव करना है कि दीज आर कोलिनियर। ये कंसेप्ट बहुत आता है पेपर्स में। आपको पॉइंट दिए हुए हैं ए बी और सी, ए बी सी पॉइंट है, और ये पॉइंट दीज आर द पॉइंट्स। जैसे अभी मैंने एक इसमें किया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई थी लास्ट लेक्चर में, ऐसे ए बी सी वर्टिक्सेस थे, ए बी सी पॉइंट थे, वर्टिक्सेस थे, उनको भी हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो वेक्टर ए है उसको मैंने लिखा है, गिवन है ये -2i + 3j + 5k, और दूसरा है बी जो है वो है i + 2j + 3k, और ये है 7i - k। तो अब ये क्या है, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स गिवन है, पोजीशन वेक्टर्स नहीं गिवन है। ये दीज आर द पॉइंट्स, ये ध्यान रखना आपने, आपको ये पॉइंट्स गिवन है, तो इसलिए पहले आप इनके वेक्टर्स बनाएंगे। वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी जैसे आपको बताया था पिछले लेक्चर से हमने किया है, वेक्टर पी और क्यू पॉइंट्स हैं, तो वेक्टर पी क्यू कैसे करते हैं, क्यू माइनस पी करते हैं। तो वेक्टर ए बी हम क्या करेंगे, बी माइनस ए करेंगे। देखो बी माइनस ए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, अब 1 - -2 ऐसे नहीं लिख रही हूँ, बी माइनस ए करेंगे, ये आ जाएगा 3i + j - 2k। अब ए बी बी सी कर रही हूँ, ए बी बी सी, बी सी, सी में से बी माइनस करेंगे, 7 - 1 6, और 7 - 1 6 -2 2j, सी माइनस बी कर रही हूँ, तो -2j, और ये आ जाएगा +4k, सॉरी सी -4k आ जाएगा, और ये 7 - 1 6। तो ऐसे ही सी ए, ए में से सी माइनस करेंगे, ए में से सी माइनस करेंगे तो माइनस ए बी बी सी, और ए सी कर लो या सी ए, मैं ए सी करती हूँ क्योंकि मैंने इनका सम करना है। इस तरह से ए बी बी सी और ए सी, तो ए सी कर रही हूँ, सी माइनस ए कर रहे हैं, तो 9i - 3j और -6k, ठीक है। और स्टेटमेंट में चेक कर रही हूँ, -2i + 3j + 5k है, और i + 2j + 3k है। तो ए बी आ गया 3i - j, हाँ बी माइनस ए करेंगे, यहाँ पे -j आएगा, -j, ठीक है। अब देखो ए बी + बी सी, ए बी + बी सी, ए सी आ रहा है, ए बी + बी सी ए सी, देखो ए बी + बी सी को ऐड करके देखो ए सी आ रहा है, ठीक है। ए बी + बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो हम क्या करते हैं, ए बी + बी सी इज इक्वल टू ए सी, मतलब दिस वन इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। एक वेक्टर को बाकी दोनों के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। या आप ऐसे देखो कि A इज इक्वल टू लैम्डा बी व्हेन टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, व्हेन टू वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ वन इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। देखो ए बी इज 2 टाइम्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ए बी इज 2 टाइम्स
बी सी। ऐसे ही ए बी इज 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए सी। तो एक कंसेप्ट तो ऐसे है, हम ये लगा सकते हैं कि these 3 vectors are collinear। दूसरा क्या है, ए बी प्लस बी सी वाला जो आपने पीछे भी किया है कि मोड ऑफ ए बी निकालेंगे, मोड ऑफ बी सी निकालेंगे और मोड ऑफ ए सी निकालेंगे। ठीक है, इन सब के मोड निकालेंगे। मोड निकालेंगे मतलब 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 4 रूट 14 आ जाएगा ये। फिर ये 36 प्लस 4 प्लस 16 ये कितना आ जाएगा, रूट 56 आ गया। रूट 56 क्या होता है, 2 2 4 14 4 56। ठीक है, और ए सी आ गया 6 6 36, 9 9 से 81 प्लस 9 प्लस 36 ये आ गया 196। तो ये आ गया 3 रूट 14 14 9 से 126। तो ये 14 रूट 14 ट्वाइस ऑफ दिस आ गया। इन दोनों का सम 1 रूट 14 प्लस 2 रूट 14 इज इक्वल टू 3 रूट 14। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं इनका मोड निकाल के, या फिर यहीं से ही देख सकते हैं 1 इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। इफ इन तीनों में अगर ऐसा रिलेशन है कि 1 इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, तो ये तीनों क्या है, कोलिनियर हैं। तो इस तरह से आपका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस सब कंप्लीट हो गए हैं, बेसिक्स हो गए हैं। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ये करेंगे। थैंक यू।